اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 33 آر ایل سرکٹ. دیکھیں اس سے پہلے ٹاپک میں ہم آر سی سرکٹ کو پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے, آر سی سرکٹ میں ریزسٹر اور کیپیسٹر لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ کے پاس آر ایل سرکٹ ہے. ٹھیک ہے, انڈکٹر آپ کو پتہ ہے میگنیٹک فیلڈ میں انرجی کو سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے فیزر ڈائیگرام کو دیکھیں. یہ آپ کے پاس وی آر یا کرنٹ کا فیزر ہے. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ کرنٹ اور وی آر کا فیز سیم ہوتا ہے تو اس کو سنگل فیزر سے جو ہے وہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے, اور آسانی کے لیے کرنٹ کا فیزر along ایکس ایکسس یا ریفرنس ایکسس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ریفرنس ایکسس ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس وی ایل ہے. آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس کے درمیان فیز ڈیفرنس ہمیشہ 90 ڈگری آپ کے پاس ہوتا ہے. تو ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق اس وی ایل کو میں یہاں پر بھی بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس وی آر, دس از وی آر, یہ آپ کے پاس وی ایل, اینڈ دس از دا انسٹنٹینیوس پوٹینشیل آف اے سورس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس انسٹنٹینیوس پوٹینشیل یہ سورس پرووائڈ کر رہا ہے, اور یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا ریزسٹر اور انڈکٹر کے تھرو. دا پوٹینشیل ڈراپ تھرو اے ریزسٹر از وی آر and the potential drop through inductor is a VL. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہم اس کو ویکٹوریل ڈیل کرتے ہیں تو سم ویکٹر سم ہم لے لیتے ہیں. V instantaneous potential is equal to the vector sum of VR and VL. ٹھیک ہے, for magnitude of V, اگر V کا میگنیچیوڈ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آ جائے گا VR square plus VL square under the root. پیتھاگورس تھیورم ہم نے استعمال کیا. تو اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ڈراپ گیون ہو تھرو ا ریزسٹر اور پوٹینشیل ڈراپ تھرو انڈکٹر گیون ہو, اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ واٹ ول بی دا پوٹینشیل آف اے سورس ان آر ایل سرکٹ, تو اس ایکویشن میں ویلیو پٹ کر کے آپ انسٹنٹینیوس پوٹینشیل کو معلوم کر سکتے ہیں. V is equal to under the root of VR square plus VL square. ٹھیک ہے, اور اگر اس سے آپ I کامن نکالیں تو under the root of R square plus XL square. ٹھیک ہے, اور یہ آر اسکوئر پلس ایکس ایل اسکوئر, اس کو ہم امپیڈنس کہتے ہیں. یہ زیڈ یہاں پر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ امپیڈنس. تو یہ آپ کے پاس امپیڈنس آف آر ایل سرکٹ. ٹھیک ہے, لاسٹ لیکچر میں دیکھیں تو یہاں پر ایک سی تھا بیکاز سرکٹ آر سی تھا, یہاں پر آپ کے پاس آر ایکس ایل ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ زیڈ امپیڈنس کو دیکھیں سو دس از اکول ٹو انڈر دی روٹ آف آر اسکوئر پلس ایکس ایل اسکوئر انڈر دی روٹ. تو اگر ریزسٹنس آف ریزسٹر گیون ہو اور انڈکٹیو ریئیکٹنس گیون ہو, اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس امپیڈنس آف آر ایل سرکٹ آپ کے پاس کیا ہوگا, آر ایل سرکٹ کا امپیڈنس آپ کے پاس کیا ہوگا, تو Z is equal to under the root of R square plus XL square. ٹھیک ہے, R اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں, Z is equal to under the root of R square plus omega square L square under the root, چونکہ XL آپ کے پاس اومیگا اسکوئر L square کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اور اومیگا کو میں لکھ سکتا ہوں 2 پائی ڈیوائڈ بائی ٹی. ٹھیک ہے, تو 4 پائی اسکوئر ایل اسکوئر ڈیوائڈ بائی ٹی اسکوئر. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس 4 پائی اسکوئر ایف اسکوئر ایل اسکوئر. تو یہ چاروں آپ کے پاس امپیڈنس کے ایکویشنز ہے. ٹھیک ہے, امپیڈنس آف آر ایل سرکٹ انڈر دی روٹ آف آر اسکوئر پلس 4 پائی اسکوئر ایف اسکوئر ایل اسکوئر, یہ تمام آپ کے پاس امپیڈنس کے ایکویشن ہے. ٹھیک ہے, میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایوریج پاور لاس کا جو ڈیفینیشن ہے آر سی سرکٹ کے لیے, آر ایل سرکٹ کے لیے, آر ایل سی سرکٹ کے لیے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر پاور لاس کو دیکھیں, دا پروڈکٹ آف کرنٹ اینڈ دا کمپوننٹ آف پوٹینشیل وچ از along a current, اگر آپ اس وی کو ریزالو کریں یہ آپ کے پاس وی ایکس ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس وی وائی ہوگا. تو وی ایکس along وی آر ہے, تو اس لیے وی ایکس کی وجہ سے انرجی لاس ہوگا, لیکن وی وائی جو ہے وہ along وی ایل ہے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وی سی اور وی ایل کی وجہ سے پوٹینشیل ڈراپ تھرو اے کیپیسیٹر, پوٹینشیل ڈراپ تھرو انڈکٹر, اس کی وجہ سے کوئی انرجی لاس نہیں ہوتا. اگر انرجی لاس ہوتے تو وہ ریزسٹنس کی وجہ سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ وی ایکس along وی آر ہے تو اس کی وجہ سے انرجی لاس ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے انرجی لاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, so the product of current and the component of potential along a current will be equal to the average power loss in RL circuit. ٹھیک ہے, اور Vx کو میں لکھ سکتا ہوں V cos phi,
اور cos phi یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ پاور فیکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. cos phi آپ کے پاس جو ہے یہ پاور فیکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پاور فیکٹر کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہے؟ cos phi is equal to VR divided by V. ٹھیک ہے, آپ فیزر ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں VR divided by V, یہ cos phi آپ کے پاس ہوگا. یا پاور فیکٹر کا ڈیفینیشن میں نے لیکچر نمبر 32 میں کیا تھا. ٹھیک ہے, the ratio of average power loss to the power delivered, وہ ڈیفینیشن بھی آپ کے پاس جو ہے پاور فیکٹر کا ہے. لیکن فیزر ڈائیگرام سے VR divided by V, IR اور IZ I کینسل تو R divided by Z, اور Z کے بجائے آپ یہ چاروں فارمولے لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس پاور فیکٹر کا فارمولا آ جائے گا. کبھی کبھی MCQ میں آپ کے پاس یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ the power factor for RL circuit will be dash. ٹھیک ہے, تو VR divided by V, R divided by Z. ٹھیک ہے, Z کے بجائے یہ 4 پٹ کر لیں تو آپ کے پاس کوئی بھی ایکویشن آپ کو دیے جا سکتے ہیں RL سرکٹ کے لیے. ٹھیک ہے, فیز اینگل ٹینجن فائی تو پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی بیس. پرپینڈیکولر آپ کے پاس VL ہے اور آپ کے پاس جو بیس ہے وہ VR ہے. VL کے بجائے XL اور VR کے بجائے R, یا ٹینجن فائی XL کے بجائے میں لکھ سکتا اومیگا L ڈیوائڈ بائی R. تو اس سے آپ فیز اینگل کو معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اومیگا کے بجائے 2 پائی ڈیوائڈ بائی T. ٹھیک ہے, بھی لکھ سکتے ہیں, یا 2 پائی FB اس کے بجائے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو RL سرکٹ میں یہ آپ کے پاس فارمولے بن گئے. سارے فارمولے وہی ہے جو RC سرکٹ میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. صرف وہاں پر VL تھا, VC تھا, یہاں پر VL ہے. وہاں پر XC تھا, یہاں پر XL تھا. ٹھیک ہے, اور XL کے بجائے آپ کے پاس یہ فارمولے اور وہاں پر بھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس RL سرکٹ میں ڈسکشن آپ کے پاس بن گیا. ٹھیک ہے, ہم نے آئیڈیل جو انڈکٹیو سرکٹ تھا وہ پڑھا تھا. پیورلی انڈکٹیو سرکٹ مینز when no power lost, لیکن یہاں پر پاور لاس آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا پاور لاس ہوگا؟ تو فیز اینگل بٹوین انسٹنٹینس کرنٹ اینڈ انسٹنٹینس پوٹینشیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو یہ آپ کے پاس فیزر ڈائیگرام سے آپ کے پاس مختلف ایکویشن آ گئے. اب یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں Z is equal to R square plus 4 pi square F square into L square امپیڈنس. اور آپ کو پتہ ہے کہ XL فریکوینسی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. XC آپ کے پاس جو ہے وہ فریکوینسی کے انورسلی پروپورشنل ہے, اور XL آپ کے پاس جو ہے وہ فریکوینسی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں ڈسکس کروا رہا ہوں. فیزر ڈائیگرام بھی میں مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں فرسٹ پوائنٹ, if frequency tends to 0 means decreasing. اگر آپ فریکوینسی کو ڈیکریز کر رہے ہیں, اسمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو XL will be also tends to 0, یہ بھی آپ کے پاس ڈیکریز ہوگا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر XL میں اس کے اوپر لکھ لیتا ہوں یہ فارمولا, یا نیچے میں لکھ لیتا ہوں R square plus XL square under the root ہے. تو اگر XL tends to 0 تو آپ کے پاس ریزسٹنس تو ہے, تو آپ کے پاس Z جو ہوگا امپیڈنس, it will be tends to R. تو سرکٹ آپ کے پاس جو ہوگا, سرکٹ behave dominantly resistive, یہ dominantly resistive کا behave کرے گا. اگر آپ فریکوینسی کو ڈیکریز کر رہے ہیں تو انڈکٹیو ریئیکٹنس will be tends to 0, یہ والا ٹرم 0 بن جائے گا, یہ والا ٹرم. ٹھیک ہے, بھی اسمال ہو جائے گا لیکن ریزسٹنس تو ہے. تو سرکٹ آپ کے پاس ڈومیننٹلی ریزسٹیو کا بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے, اگر میں لکھ لوں if frequency is equal to 0, مطلب میں ایک ڈی سی سورس کے ساتھ RL سرکٹ کو لگا لوں تو XL آپ کے پاس 0 بن جائے گا اور Z آپ کے پاس R کے برابر ہو جائے گا, اور اس کو ہم کہتے ہیں the circuit will behave purely resistive circuit. سرکٹ پیورلی ریزسٹیو بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اگر سرکٹ آپ کے پاس جو ہے پیورلی ریزسٹیو بیہیو کرے گا تو پھر پاور فیکٹر آپ کے پاس, فیز اینگل آپ کے پاس کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان کیا ہوگا, 0 ڈگری. پاور فیکٹر آپ کے پاس کیا ہوگا, 1. ٹھیک ہے, اور ایوریج پاور لاسٹ آپ کے پاس جو ہوگا
it will be equal to maximum. एवरेज पावर लॉस आपके पास मैक्सिमम होगा. ठीक है, अगर आप एक डीसी सोर्स के साथ आरएल सर्किट को लगा लें, मतलब जो सर्किट मैंने अभी ड्रॉ किया था, एसी आप हटा लें और आप एक बैटरी कनेक्ट करें, तो डीसी सोर्स है और डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0. तो वहां पर आपके पास जो सर्किट होगा वो प्योरली रेजिस्टिव का बिहेव करेगा. और यहां पर एक और चीज भी याद रखें, ठीक है, इंडक्टर आपके पास जो है has no role in DC circuit. ठीक है, इंडक्टर हैज no role in DC circuit, या इंडक्टर कैन नॉट अपोज DC. और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इंडक्टर कैन नॉट अपोज DC. इंडक्टर DC को अपोज नहीं कर सकता. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास. Second, if frequency tends to infinity means मैं frequency को बढ़ा रहा हूं, तो XL will be tends to infinity, it will be also increasing. और अगर XL increase होगा तो आप ये देखिए, this is very large, तो ये तो small होगा. ठीक है, तो हम इसको neglect कर सकते हैं. तो मैं लिख लूंगा Z will be tends to XL. Z will be tends to XL. और सर्किट आपके पास जो है बिहेव करेगा डोमिनेंटली इंडक्टिव. सर्किट डोमिनेंटली इंडक्टिव बिहेव करेगा. ठीक है, और अगर मैं लिख लूं इसी के सामने, अगर मैं लिख लूं इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो XL विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. और अगर XL इनफाइनाइट हो जाए तो Z आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू XL. और सर्किट आपके पास जो होगा प्योरली, ठीक है, सर्किट यहां पर डोमिनेंटली इंडक्टिव, यहां पर प्योरली इंडक्टिव. और अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव बिहेव करेगा तो फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आपके पास होगा, इट विल बी 90 डिग्री. अगर आप पावर फैक्टर को देखें वो आपके पास 0 होगा. ठीक है, और अगर आप एवरेज पावर लॉस देखें वो भी आपके पास 0 होगा. तो देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इनफाइनाइट देन आरएल सर्किट विल बिहेव प्योरली इंडक्टिव. प्योरली इंडक्टिव का बिहेव करेगा. ठीक है, और अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव बिहेव करेगा देन द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज विल बी 90 डिग्री. पावर फैक्टर आपके पास 0 होगा. एवरेज पावर लॉस आपके पास है वो क्या होगा? 0 होगा. अगर आरसी सर्किट में आप देखें प्योरली कैपेसिटिव, तो प्योरली कैपेसिटिव में भी आपके पास ये कंडीशंस होंगे. ठीक है, लेकिन प्योरली रेजिस्टिव में आपके पास ये वाले कंडीशंस होंगे. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. तो ये आपके पास आरएल सर्किट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया है. ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा. यहाँ पर हमने क्या किया पढ़ा और इसमें मुख्तलिफ एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं. ठीक है, मैं अगर एक मॉडल एमसीक्यू बना लूं कि आपके पास इन आरएल सर्किट R is equal to XL is equal to let's suppose 500 ohm. ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस वो आपके पास 500 ओहम के बराबर है. ठीक है, तो अगर ये 500 ओहम के बराबर है देन व्हाट विल बी phase difference between what will be the phase difference between current and potential drop by inductor या potential through inductor. इसके दरमियान फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा? ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 180 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री. ठीक है, अगर स्टेटमेंट को आप लोग देख ले, आरएल सर्किट है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्किट आपके पास आरएल सर्किट है.
ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस 500 ओहम के बराबर है, देन व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? आर फेज एंगल। मैं फेज डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता हूं या फेज एंगल भी आपसे पूछ सकता हूं बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंडक्टर। ठीक है, तो आई और वी एल के दरमियान फेज डिफरेंस आपसे मांगा गया है आर एल सर्किट में। तो देखिए, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके जहन में डायरेक्टली आएगा कि हम फेज एंगल के फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि XL डिवाइड बाय R के बराबर है। आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि हम फेज एंगल वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये तो आप तब इस्तेमाल करते हैं अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल के दरमियान फेज एंगल मालूम करें। अगर आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल और इंस्टेंटेनियस करंट के दरमियान एंगल मालूम करें तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना होगा। यहां पर आपसे तो करंट और वीएल के दरमियान फेज डिफरेंस के बारे में पूछा गया है, और आप याद रखें कि वीएल और करंट के दरमियान हमेशा 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। अगर यहां पर एक छोटा सा डायग्राम में बना लूं, ये आपके पास आई था, ये आपके पास वीएल था, ठीक है, ये आपके पास वीआर था, ये आपके पास वी था, ये फेज एंगल था। तो मैंने तो आपसे आई और वी के दरमियान एंगल के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो आपसे पूछे वीएल और करंट के दरमियान, जो कि हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। आपने थोड़ा सा एमसीक्यू को पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा क्या आपसे पूछ रहा है, उसके मुताबिक से आपने आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 90 डिग्री है। अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंडक्टर ना करूं, मैं अगर लिख दूं द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज या पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स, तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये आपको क्या देगा? 45 डिग्री आपको देगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं फाई इज इक्वल टू डैश बिटवीन आई एंड वी, तो अब ये आपके पास 45 डिग्री होगा। करंट और वोल्टेज के दरमियान 45 डिग्री है, लेकिन करंट और वीएल के दरमियान 90 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू था। ठीक है, एक दूसरे एमसीक्यू मैं इस तरह लिख सकता हूं, इफ RC circuit connected with a battery, if RC circuit connected with battery where resistance is 100 ohm and capacitance is 10 microfarad, where resistance is equal to 100 ohm and capacitance is 10 microfarad and capacitance 10 microfarad and potential of a battery, this is let's suppose 5 volt, this is a 5 volt। RC सर्किट को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, ठीक है, where resistance of a resistor is 100 ohm, capacitance of a capacitor is 10 microfarad and the potential of a battery used is a 5 volt। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं then average power lost, by circuit will be dash। मैं एक क्वेश्चन मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये एक क्वेश्चन आपके पास बन गया। मैं इसके साथ चलो लिख लेता हूं 1। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ सकता हूं then circuit behave as a dash। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ सकता हूं the phase angle between current and voltage is a dash। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ सकता हूं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, यहां पर फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 है और XC आपको पता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0, XC विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा और Z आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू XC। तो सर्किट
प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा कि सर्किट प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। इसका आंसर आपके पास ये। और अगर प्योरली कैपेसिटिव हो तो पावर लॉस आपके पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फेज एंगल आपके पास क्या होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? वो आपके पास 90 डिग्री होगा। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, तो दिस इज अनदर मॉडल एमसीक्यू। ठीक है, वही कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं उसी में मैंने एक एमसीक्यू बना लिया है। ठीक है, क्योंकि अब अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो, डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, एक सी आपके पास क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और अगर एक सी आपके पास इनफाइनाइट होता है तो सर्किट आपके पास जो होगा वो प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आंसर्स आ गए। ठीक है, एवरेज पावर लॉस क्या होगा? 0। सर्किट बिहेव इज प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज विल बी 90 डिग्री। RLC सीरीज सर्किट, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स। अगर रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम सीरीज में लगा लें, इसको हम RLC सीरीज सर्किट कहते हैं। V is the potential of a source, VR is the potential drop through a resistor, VL is the potential drop through inductor, and VC is the potential drop through a capacitor. पहली बात तो ये याद रखिए, ये सोर्स, इंडक्टर और कैपेसिटर को जो एनर्जी देता है वो एनर्जी ऑसिलेट करेगा बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। फिर आप लोग सुने, ये सोर्स एक दफा इन दोनों को एनर्जी सप्लाई करे तो वो एनर्जी इन दोनों के दरमियान ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये सोर्स इन दोनों को एनर्जी नहीं देगा। तो स्टार्ट में सोर्स इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जाइज्ड करता है, एनर्जी देता है, और फिर इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान वही एनर्जी क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ठीक, ये सोर्स फर्दर इन दोनों को एनर्जी नहीं देता। ठीक है, हाँ, ये रेजिस्टर चूंकि पावर लॉस करेगा तो इसको ये सोर्स एनर्जी देगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो सोर्स इनिशियली कैपेसिटर और इंडक्टर को एनर्जी देगा और सोर्स कंटिन्यूसली उतना एनर्जी देगा सर्किट को जितना रेजिस्टर लॉस कर रहा है। और याद रखिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान जो एनर्जी ऑसिलेट करता है उसकी वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा, उसकी वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये तो आपके पास जो है जनरल डिस्कशन आपके पास हो गया RLC सीरीज सर्किट में। अच्छा, इसको हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स भी कहते हैं। कैपेसिटर इन AC सर्किट, इंडक्टर इन AC सर्किट। ठीक है, RC, RL, इसको हम RLC सीरीज, इसको हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स भी कहते हैं। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बना लूं, ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बना लूं तो इसका फेजर डायग्राम आपके पास ये है। ये आपके पास I, ये आपके पास IR, ये आपके पास IL, या ये आपके पास IC, कोई भी आप लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट, IR the current through a resistor, IL the current through inductor, IC the current through capacitor, क्योंकि तीनों सीरीज में तो सेम आपके पास होगा। ठीक है, और मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं दिस इज VR, क्योंकि VR और करंट हमेशा इन फेज होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंगल फेजर डायग्राम करंट और VR के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो आपको पता है कि VC से करंट जो है वो लीड करते हैं 90 डिग्री से। ठीक है, तो करंट और VC के दरमियान कितना फेज डिफरेंस है? RLC सर्किट में भी 90। VC और VR के दरमियान कितना फेज एंगल है? 90। VR VC, VCI, VCIR, VCIL, VCIC 90। VRI, VRIR, VRIL,
VRIC इसके दरमियान 0 डिग्री, ठीक है, और एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, दिस इज VL। अगर आप लोग देखें, दिस इज ऑल्सो 90। VL और VR के दरमियान, VL और VR के दरमियान 90 डिग्री, VL और I, VL IR, VL IL, VL और IC के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। VC और VR के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, और VL और VC के दरमियान 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। RLC सीरीज सर्किट में द फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि VL और VC कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होते हैं। 180 डिग्री मींस कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने VL को VC से ज्यादा ले लिया, ठीक है, VL को VC से हमने ज्यादा ले लिया, और VL और VC के दरमियान 180 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इंडक्टर में एनर्जी 0 होगा, अगर इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम है तो कैपेसिटर में एनर्जी 0 होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर कैपेसिटर को एनर्जी देगा, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर वापस इंडक्टर को एनर्जी देगा, ठीक है। याद रखें 180 डिग्री का मतलब आपके पास ये बनता है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं ड्रा करूं, ये आपके पास डेल्टा V होगा, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू VL माइनस VC। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होता है डेल्टा V, ये आपके पास VL माइनस VC के बराबर होता है, ये आपके पास VL माइनस VC के बराबर होता है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में MCQs पॉइंट्स क्या है, VL और VC के दरमियान फेज डिफरेंस 180, VL और VR 90, ठीक है, VC और VR 90, इस तरह करंट। ये डेल्टा V, ये आपके पास ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बन गया, जो कि VL और VC के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहां से आप लोग ड्रा करें, दिस इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सोर्स का है, और ये आपके पास जो है, ये आपके पास दिस इज phi, द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। phi आपके पास जो है, दिस इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज एंगल है, ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये इसका आपके पास कंप्लीट फेजर डायग्राम आपके पास बन गया, ठीक है। तो चूंकि वेक्टोरियली हम इसको डील करते हैं, तो V आपके पास जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू VR प्लस डेल्टा V, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं VR प्लस VL माइनस VC, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड के लिए V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, अगर VR गिवन हो, VL गिवन हो, VC गिवन हो, आपसे पूछा जा सकते हैं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इन अ सर्किट, तो आप इससे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को मालूम कर सकते हैं। ये VC, ये आपके पास VL है, ठीक है। और V इज इक्वल टू I इंटू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इम्पिडेंस, ये आपके पास क्या है? इम्पिडेंस है। और V इज इक्वल टू IZ, V is equal to IZ, ठीक है, where Z is equal to R square plus XL minus XC whole square, ठीक है। और
Z is equal to R square plus omega L minus 1 divided by omega C whole square. ठीक है, और ओमेगा एल को मैं लिख सकता हूं R square plus 2 pi f L minus 1 divided by 2 pi f C under the root. ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 2 pi L divided by टाइम पीरियड या T divided by 2 pi. ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं R square plus 2 pi L divided by T minus T divided by 2 pi C और होल स्क्वायर. तो ये तमाम आपके पास इंपेडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, ये भी 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 आपके पास इंपेडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट है. ठीक है, तो फेजर डायग्राम से आप इसको जो है मालूम कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे आप इंपेडेंस मालूम कर सकते हैं, इससे आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल. ठीक है, और आरएलसी सर्किट को बेसिकली हम कहते हैं दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर. ये आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है. ठीक है, अब इसमें भी आपके पास वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अगर लिख लो, Z आपके पास है दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2 pi FL minus 1 divided by 2 pi FC और होल स्क्वायर अंडर द रूट. ये आपके पास इंपेडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट आपके पास बन गया. ठीक है, ये आपके पास क्या बना, द इंपेडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट. अब इसमें भी आपके पास जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसमें भी आपके पास जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, नंबर फर्स्ट मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड XC आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर मैं लिख लो if frequency tends to 0 means the frequency is decreasing. ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है XL will be tends to 0, ये भी आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा. बट XC आपके पास होगा इट विल बी टेंस टू इंफिनिटी, ये आपके पास इंक्रीजिंग मींस वेरी लार्ज. और देखिए यहां पर आपके पास इंपेडेंस में Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. तो आप देखिए इसमें 3 पैरामीटर्स हैं. ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपके पास. तो देखिए अगर आपके पास XL टेंस टू 0, XC आपके पास टेंस टू इंफिनिटी, तो इसीलिए अगर XC टेंस टू इंफिनिटी तो मैं लिख सकता हूं Z विल बी टेंस टू XC और सर्किट आपके पास डोमिनेंटली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा. द सर्किट विल बिहेव डोमिनेंटली कैपेसिटिव. अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कह रहे हैं, ठीक है, तो आरएलसी सीरीज सर्किट आपके पास होगा इट विल बिहेव डोमिनेंटली कैपेसिटिव. ठीक है, ये डोमिनेंटली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा. इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, मैं इसको लिख लेता हूं प्योर डीसी बैटरी और सेल, तो XL इट विल बी इक्वल टू 0 और XC आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. तो Z आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू XC. और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर्किट आपके पास प्योरली कैपेसिटिव होगा. द सर्किट विल बी प्योरली कैपेसिटिव. ठीक है, फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, करंट और वोल्टेज के दरमियान. ठीक है, फेज डिफरेंस या फेज एंगल आपके पास क्या होगा 90 डिग्री. पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है 0 और एवरेज पावर लॉस भी आपके पास 0 होगा. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो अगर आप आरएलसी सीरीज सर्किट को बैटरी या सेल के साथ लगा लें तो सर्किट प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री, पावर फैक्टर इज 0 और एवरेज पावर लॉस भी आपके पास 0 बन जाएगा. ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी
हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो XL XC आपके पास होगा, इट विल बी टेंड्स टू 0, मींस डिक्रीजिंग, ठीक है। और XL आपके पास होगा, इट विल बी टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस इंक्रीजिंग। XL आपके पास टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपके पास इंक्रीज होगा। और Z आपके पास जो होगा, ठीक है, इट विल बी टेंड्स टू XL, और ये आपके पास डोमिनेंटली इंडक्टिव का बिहेव करेगा, डोमिनेंटली इंडक्टिव का बिहेव करेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, XC will be equal to 0, XL will be equal to infinite, तो Z आपके पास होगा, it will be equal to XL, और सर्किट आपके पास जो होगा, it will be purely inductive, ये आपके पास प्योरली इंडक्टिव का बिहेव करेगा, ठीक है। फेज एंगल आपके पास वही 90 डिग्री, ठीक है। पावर फैक्टर आपके पास 0, और एवरेज पावर लॉस भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इन RLC सीरीज सर्किट। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें तो सर्किट डोमिनेटली कैपेसिटिव होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, मींस आपने बैटरी के साथ RLC सीरीज सर्किट को लगा लिया, ठीक है, तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट जो होगा वो प्योरली कैपेसिटिव बिहेव करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो सर्किट डोमिनेटली इंडक्टिव होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो तो फिर सर्किट प्योरली इंडक्टिव आपके पास होगा, ठीक है। और ये 3 इसमें से जरूरी पॉइंट्स, और जिस तरह से पहले मैंने एमसीक्यूज बनाए थे, एग्जैक्टली उसी किस्म के एमसीक्यूज इसमें भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज RLC सीरीज सर्किट। और याद रखिए, RLC सीरीज सर्किट आपके पास जो है, ठीक, ये बेसिकली LC सर्किट होते हैं, LC। फिर ये R क्या है, ये R आपके पास उस सर्किट का रेजिस्टेंस है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिहेव लाइक अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर एंड कैपेसिटर। उसको फिर हम क्या कहते हैं, RLC सीरीज सर्किट हम इसको कहते हैं, LC सर्किट कहते हैं, हम इसको RLC कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली LC सर्किट है, ठीक है। जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है रिसीवर सर्किट कहलाता है। रिसीवर सर्किट टेलीविजन में, ठीक है, रेडियो में रिसीवर सर्किट जो है वो लगा होता है, ठीक है। तो रिसीवर सर्किट भी हम LC सीरीज सर्किट को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास RLC सीरीज सर्किट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया है, ठीक है। अच्छा, अगर बुक में देखें तो यहां पर लिखा गया है RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट इज अ resonating circuit. RLC series circuit is a resonating circuit. ठीक है, RLC series circuit आपके पास जो है, ठीक है, इसको हम as a resonating circuit भी कहते हैं। कब कहते हैं हम इसको, कब resonating circuit कहते हैं? First of all, a resonating frequency, a resonating frequency, ठीक है, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। ये RLC सीरीज सर्किट के लिए भी है, ये RLC पैरेलल सर्किट के लिए भी है। L इज द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आप RLC सर्किट में इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, इसमें पुट करें तो आप किसी भी RLC सीरीज सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज के लिए भी है ये फार्मूला, और पैरेलल के लिए भी यही फार्मूला है, ठीक है। 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। L इंडक्टेंस, C आपके पास कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डबल किया जाए और इंडक्टेंस हाफ, तो फिर उस RLC सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिमेन सेम। अगर आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर जाए तो फिर RLC सीरीज सर्किट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। 2 2 4, 4 √2,
तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, एट विच resonating frequency at which XL is equal to XC, at which XL is equal to XC first, second at which Z is equal to R, सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है। ठीक है, at which circuit behave is purely resistive circuit, at which impedance is minimum, impedance minimum, अगर impedance minimum हो तो करंट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करंट will be maximum, at which 6 आपके पास जो है फेज एंगल आपके पास 0 डिग्री, फेज एंगल आपके पास क्या हो 0 डिग्री, पावर फैक्टर cos phi आपके पास 1 एंड एवरेज पावर लॉस आपके पास मैक्सिमम, ये 6, ये आपके पास 7, ये आपके पास 8 पॉइंट। ठीक है, resonating frequency is that frequency at which इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए तो फिर इंपेडेंस आर के बराबर होगा। ठीक है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव का बिहेव करेगा, इंपेडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0 डिग्री होगा, पावर फैक्टर आपके पास 1 होगा और एवरेज पावर लॉस आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट भी है, एक और पॉइंट भी आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास 6 पॉइंट, ये आपके पास 7 पॉइंट, ये आपके पास 8 पॉइंट और एक आपके पास 9 पॉइंट भी है। V0L, this is much more greater than V, and V0C, this is much more greater than V. Means at resonating frequency, potential drop through inductor is very very large as compared to the potential of a source. ठीक है, at resonating frequency potential drop through a capacitance is much more greater than the potential of a source. तो ये सारे MCQs पॉइंट्स है। अच्छा, ये सारे आप अपने पास नोट करें और ये सारे MCQs पॉइंट्स हैं। At resonating frequency RLC series circuit behave as a dash, purely resistive, फेज एंगल क्या होगा, करंट, वोल्टेज, इंपेडेंस क्या होगा, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स है आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी पे याद रखे जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा आरएलसी सीरीज सर्किट का, उसके साथ वो रेजोनेट होगा और वही फ्रीक्वेंसी वो रिसीव कर सकता है। आप देखें ना, आरएलसी सीरीज सर्किट को हम जो है, एलसी सीरीज सर्किट को हम रिसीवर सर्किट भी कहते हैं, रिसीवर सर्किट। आप टेलीविजन चैनल सुन रहे हैं, आप रेडियो चैनल सुन रहे हैं, ठीक है, तो हर एक टेलीविजन चैनल का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। आप जो ट्यूनिंग करते हैं ना रेडियो का या टेलीविजन का, तो आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट किस चीज से किया जाता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगा होता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस अगर आप चेंज करेंगे तो उस सर्किट का रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो हर एक चैनल का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, आप जो है हर एक रेडियो चैनल का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, आप ट्यून करते हैं, आप कौन सा चैनल सुनना चाहते हैं उसके लिए आप ट्यूनिंग करें। ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी आपका टेलीविजन या रेडियो जो है वही फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। ठीक है, याद रखें जहां पर ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, टेलीविजन स्टेशन में ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, टेलीविजन स्टेशन में ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करता है और ट्रांसमीटर्स में ट्रांसमीटर सर्किट एलसी पैरेलल सर्किट लगा होता है, एलसी पैरेलल सर्किट लगा होता है। ठीक है, और रिसीवर सर्किट में एलसी सीरीज सर्किट लगा होता है। तो रेडियो और टेलीविजन में एलसी सीरीज सर्किट लगा होता है।
اور ٹرانسمیٹرز میں LC پیرلل سرکٹ لگا ہوتا ہے. باقی فریکوینسی LC پیرلل اور سیریز کے لیے یہی آپ کے پاس امپورٹنٹ فارمولا ہے, اور یہ تمام آپ کے پاس امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہ V ناٹ L کیا ہے؟ دا پوٹینشیل ڈراپ تھرو انڈکٹر ایٹ ریزوننس. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا پوٹینشیل ڈراپ, دس از دا پوٹینشیل ڈراپ تھرو کیپیسیٹر ایٹ ریزوننس. تو اس کا مطلب یہ ہے ایٹ ریزوننس potential drop through a capacitor or potential drop through inductor is much more greater than the potential of a source. لیکن یہ کنڈیشن, تمام کنڈیشنز یہ جب سرکٹ ریزونیٹ ہوگا ان کنڈیشن میں یہ آپ کے پاس ٹھیک ہوں گے, ادروائز ٹھیک نہیں ہوں گے. اور دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ I is inversely proportional to Z, جس طرح ہم کہتے ہیں نا I is inversely proportional to R. تو اب یہاں پر امپیڈنس ہے, تو امپیڈنس منیمم, کرنٹ آپ کے پاس میکسیمم. ٹھیک ہے, اور اگر بک میں دیکھیں تو اس قسم کا ایک جو ہے ڈائیگرام بھی گیون ہے. یہ آپ کے پاس آئی, یہ فریکوینسی, تو یہ آپ کے پاس گراف یہاں پر یہ ریزونیٹنگ فریکوینسی FR. تو ریزونیٹنگ فریکوینسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ آپ کے پاس جو ہے دس از میکسیمم. ٹھیک ہے, اس قسم کا گراف گیون ہے. دس از ریزونیٹنگ فریکوینسی اینڈ ہیئر دا کرنٹ از میکسیمم. تو یہ آپ کے پاس RLC سیریز سرکٹ میں امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے پاس بن گئے. ٹھیک ہے, اور آپ کسی بھی بک کو اٹھا لیں تو اس سے MCQs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جوابات آپ کو مل گئے. اچھا, اب یہاں پر RLC سرکٹ کا کوالٹی میگنیٹائزیشن فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوالٹی اور میگنیٹائزیشن فیکٹر. ٹھیک ہے, تو اس کا مختلف ڈیفینیشن ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دا ریشو آف پاور ڈیلیورڈ ٹو دا پاور آؤٹ پٹ, پاور ڈیلیورڈ ٹو دا پاور ڈسیپیٹڈ. ٹھیک ہے, اس کو بیسیکلی ہم کوالٹی فیکٹر یا میگنیٹائزیشن فیکٹر کہتے ہیں. پاور ڈیلیورڈ ٹو پاور ڈسیپیٹڈ, اور ڈیلیورڈ ڈسیپیٹڈ سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے کوالٹی فیکٹر آپ کے پاس ہوگا یہ 1 سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. اچھا, اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں, اس کے فارمولے آپ کے بک میں گیون ہے, ضروری پوائنٹس X naught L divided by RL. ٹھیک ہے, R Q is equal to V naught L divided by VR. بلکہ میں V of a source لکھ لوں گا. Q V naught C divided by V. یہ سارے فارمولے ہیں, لیکن مین فارمولا یہ استعمال ہوتا ہے. X naught L, the inductive reactance at resonance. The inductive reactance at resonance. اور یہ RL آپ کے پاس کیا ہے؟ the resistance of inductor. ٹھیک ہے, اس میں جو ضروری پوائنٹ ہے, the quality factor is inversely proportional to the resistance of a inductor. Quality factor is inversely proportional to the resistance of inductor. آپ انڈکٹر کا ریزسٹنس جتنا کم رکھیں گے, کوالٹی فیکٹر اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ X naught L یہ آپ کے پاس RL سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں بتا چکا تھا کہ انڈکٹر لو ریزسٹنس وائر سے بنایا جاتا ہے. اور انڈکٹر لو ریزسٹنس وائر سے کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ کم انرجی لاس کرے, تاکہ کم انرجی لاس کرے ریزسٹنس کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر X naught L آپ دیکھیں یا V naught L آپ دیکھیں, یہ V سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے, تو کوالٹی فیکٹر 1 سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, آپ جتنا کم ریزسٹنس رکھیں گے کوالٹی اتنا ہی بہتر ہوگا. آپ دیکھیں پرانے زمانے کے ٹیلی ویژن یا پرانے زمانے کے ریڈیو دیکھیں, اگر آپ اس کو ٹیون کریں تو بہت ٹائم لیتے ہیں ٹیون کرنے کے لیے, بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں ٹیون کرنے, پھر بھی پکچر کوالٹی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شور ہوتا ہے, پکچر خراب ہوتا ہے. لیکن آج کل ایک آپ کا موبائل کیوں نہ ہو, موبائل کا پکچر دیکھیں, ویڈیو دیکھیں, کافی زیادہ بہترین کوالٹی والے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ موبائل میں
इलेक्ट्रॉनिक साइज जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल साइज वाले इंडक्टर्स होते हैं और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो उसका क्वालिटी बेहतरीन होता है. तो आप रेजिस्टेंस इंडक्टर का जितना कम करेंगे तो क्वालिटी आप उतना इंप्रूव कर सकते हैं. इसमें आपके पास ये जरूरी पॉइंट्स हैं. एंड क्वालिटी फैक्टर और मैग्नेटाइजेशन फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये हमेशा 1 से ग्रेटर होता है. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर और मैग्नेटाइजेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. ठीक है, तो ये आप जो है अपने पास नोट करें. अच्छा, अब इसके बाद जो है मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखें. क्लासिकल मैकेनिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज एंड मैक्सवेल इक्वेशंस. क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स एज अ होल is based on Maxwell equations and Newton laws. Maxwell equation आज तक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या क्लासिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन मैक्सवेल इक्वेशन के पास ना हो. मोशन से रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसका जवाब न्यूटन लॉज के पास ना हो. ठीक है, तो एज अ होल क्लासिकल फिजिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज एंड मैक्सवेल इक्वेशंस. याद रखिए, एक्चुअल मैक्सवेल इक्वेशंस आपके बुक में नहीं है. ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट आपके पास ये भी है कि मैक्सवेल ने किस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और मैक्सवेल इक्वेशंस जो है उसने बना लिए. तो एम्पेयर्स लॉ को उसने मॉडिफाई किया था. ठीक है, एम्पेयर्स लॉ को उसने मॉडिफाई किया था. ठीक है, और 4 इक्वेशन गॉसेस लॉ, ठीक है, एम्पेयर्स लॉ का मॉडिफिकेशन, ठीक है, वगैरह, उसको करके 4 इक्वेशन, फैराडेज लॉ 4 इक्वेशंस उसने बनाए थे. लेकिन वो एक्चुअल इक्वेशंस आपके बुक में नहीं है. हाँ, मैक्सवेल की जो थ्योरी यहां पर मौजूद है, आप अगर देखें तो हमने 3rd चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. 3rd चैप्टर में मींस कास था मैग्नेटिक फील्ड का मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर. और फिर 4th चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट प्रोड्यूस करेगा या इंड्यूस करेगा. तो मैक्सवेल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस चीज को कंफर्म किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल कासेस हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअल कासेस है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर द म्यूचुअल कासेस ऑफ ईच अदर. और इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में मैथमेटिकली उसने जो है वो प्रूव कर लिया. ठीक है, उसने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 पाई r डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या 1/2 पाई r, ठीक है, डेल्टा बी ए डिवाइड बाय डेल्टा टी. ठीक है, ये इक्वेशन उसने डिराइव किया. प्रूफ आप बुक में देख सकते हैं, यहां पर प्रूफ हम नहीं करवा रहे. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये आपके पास कास है, ये आपके पास कास है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है दिस इज इफेक्ट. तो ये इक्वेशन क्लियर कट बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कास है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन है. ये मैक्सवेल ने बाकायदा मैथमेटिकली थ्योरेटिकली कंफर्म किया इस इक्वेशन से, जो कि प्रूफ आपके बुक में मौजूद है. मैक्सवेल ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कास है वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है. ठीक है, एंड सिमिलरली उसने ये कहा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2 पाई r डेल्टा फाई E डिवाइड बाय डेल्टा t या म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट 2 पाई r डेल्टा E A डिवाइड बाय
डेल्टा टी। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपके पास इफेक्ट है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कास है, ये आपके पास क्या है, कास है, ठीक है। तो यहां पर उसने ये कंफर्म किया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन है, ठीक है। उसने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कास है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन है। तो इसका मतलब क्या है, उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में इन इक्वेशन से ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल कासेस है। थ्योरेटिकली उसने इसको कंफर्म किया, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बता रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसने फिर ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल कासेस हैं, ठीक है। तो ये उसने कंफर्म किया, ठीक है। अच्छा, अब उसने एक और बात भी की कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी उसने एक बात की, ठीक है, कि लाइट आपके पास जो है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कंसेप्ट दिया, और स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक से लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। उसने ये कहा कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है इट इज ऑसिलेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ रीजन, दिस इज रीजन that light need no medium for its propagation। ये आपके पास रीजन है, ठीक है, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि लाइट के लिए किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं होता। विदाउट मीडियम लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट करता है, ठीक है। एंड मैक्सवेल measure speed of light theoretically for first time। ये भी MCQ पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट theoretically measure for the first time by डैश, तो मैक्सवेल, ठीक है। और वो आपके पास क्या है, 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ इप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, ठीक है। या सी आपके पास इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो उसने थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ लाइट को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो मेजर किया, ठीक है। इसी फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट किया गया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड आपके पास आया। और उसने क्या कहा, बाय मैक्सवेल ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग, ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज, ये आपके पास कास है, ये आपके पास कास है किस चीज का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या कहा कि द ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द कास ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट। और ये एक नया कंसेप्ट था, ठीक है। ये एक नया कंसेप्ट था कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा या ऑसिलेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट को जनरेट करेगा। एंटीना सिस्टम जितनी भी है एंटीना सिस्टम वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वेव आता है,
एंटीना में वो चार्जेस को उसी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर जाता है या ऑसिलेट कर जाता है, ठीक है। और यहां पर उसने ये लिखा कि अगर एक चार्ज बॉडी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट FL, दिस इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा, चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा, ये उसी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट हमें देगा। ये आपके पास क्या होगा? लाइट, उसी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देगा। अगर ये आपके पास रॉड है एंड दिस रॉड इज अ चार्ज, अगर ये रॉड है और ये चार्ज है और इसको मैं इस तरह ऑसिलेट कर रहा हूं, तो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूं, उसी फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो चार्ज बॉडी को आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास है वो ये बनता है, ठीक है। और जितनी भी आपके पास एंटीना सिस्टम है, दे ऑल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, उसने एक और आइडिया भी दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये आपके पास थ्योरेटिकल करंट है, ये आपके पास थ्योरेटिकल करंट है, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम इसको हासिल नहीं कर सकते, ये थ्योरेटिकल करंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कास आपके पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन आपके पास होता है, ठीक है। कंडक्शन करंट, आम नॉर्मल करंट जो आप लेते हैं, कंडक्शन करंट, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका कास आपके पास जो है, कास, वो आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस, ये कंडक्शन करंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। अगर आप इसी मैक्सवेल इक्वेशन में देखिए तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन होता है, ठीक है। एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इंसुलेटर में या वैक्यूम में भी पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम कंडक्शन करंट पॉसिबल नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ थ्योरेटिकल करंट। एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली इस करंट को हम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में फर्क है, फ्लो ऑफ चार्जेस, और वो बस थ्योरेटिकल करंट है जिसका कास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द मैक्सवेल इक्वेशंस। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मुख्तलिफ किस्म के, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरेज, गामा रेज, वो आप खुद पढ़े, ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो उसको आप एक नजर खुद पढ़े। आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। इस चैप्टर में मैथमेटिक्स ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट्स क्लियर हो आपका, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसका, इस चैप्टर में आपके लिए आसानी होगी। और इंशाल्लाह हर वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो कि MCQs के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, और मेहनत करें। थैंक यू सो मच।